Good afternoon and welcome everyone to today's daily news analysis. In today's daily news analysis, we are going to talk about population control policies in the light of China's two-child norm. China में population aging के जो concerns आ रहे हैं उनके चलते we are going to see this topic in the light of India's demographic planning, India's population policies. Second issue we are going to talk about is FDI related. There is an FDI related editorial. Third thing that we are going to talk about is child labor issues. There is an editorial on child labor issues as well. So in the first part of DNA today, we are going to deal with the editorials and then we will switch to the news articles. Getting started with it, TMC BJP. This is another important news article that we are going to see. The chief secretary did not attend the meeting of the Prime Minister to review Yas, the cyclone of West Bengal. It seems that this must have happened on the orders, or you can say informal orders of the West Bengal Chief Minister. So Chief Secretary did not attend the meeting. Now the central government is holding him to account under Disaster Management Act. Disaster Management Act Section 51 is being invoked by Union Home Ministry asking the Chief Secretary to report to Delhi because of the fact that he has violated Section 51. Section 51 says that if somebody obstructs the functioning of the Disaster Management Authority, that person could be held guilty, which may lead to a punishment of 1 year, or if it is assumed to have caused some loss of lives, then the punishment could rise up to 2 years. So politicization of civil services, morale of civil services, and the second part is going to be your politicization of civil services, morale of civil services. The third is your indiscipline among civil services. Why the civil servant did not attend the meeting of the Prime Minister? IMD increases monsoon rain outlook. So this is just an outlook. India में ये कहा जाता है जब Indian Meteorological Department, India's monsoon department जब कहे कि बारिश होगी छाता लेके बिल्कुल मत जाओ, और जब IMD ये कहे कि बारिश नहीं होगी तो जरूर अम्ब्रेला लेके जाओ, राइट? तो इसी के लिए ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे. स्टिल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड some given details. Supreme Court is asking the government to give details of the scheme for orphaned children. I think on 31st of May, the government unveiled that it is going to come up with a scheme under which rupees 10 lakh would be given to every child who has got orphaned due to the pandemic, right? Yes, पहले editorial discuss करेंगे आज. Is it visible to everyone? Now, first thing first, you should get yourself added to the WhatsApp broadcast list. The number is WhatsApp पे आपको message करना है to get yourself added, so that if in case you have any query, you can reach out to this DNA helpline number. This is the dedicated helpline number, DNA helpline number for you guys, in which you can bring across all your queries. You can put in all your queries on this number via WhatsApp only. Please don't call. There is no need to call because there are so many students. So there is no point in calling. Okay, आप WhatsApp करोगे, they will add you. Simply you have to type add for DNA. Okay, add for DNA. That's it. Or add numeric for DNA. They will add you automatically. Now, moving further, Moody's cuts GDP forecast. Of no relevance for our purpose, Moody's will keep on cutting or keep on increasing the forecast. This is of no relevance. Manufacturing PMI slides in May. Job losses quicken. Manufacturing sector का purchasing manager index. हमारे ऑफिस में there is a manager who takes care of purchasing of cartridges, printer, paper, books. Whether we need to purchase more laptops, we need to purchase more raw material or not. So the index of industrial production that you see, before that there is an other index, purchasing managers index. This purchasing managers index is a prelude. It's a prelude. You understand the meaning of prelude? मतलब ये पहले ये बता देता है कि अगले महीने का whether for next month index of industrial production is going to be high or no. And index of industrial production in turn tells us about GDP. Okay, IIP tells us about the GDP. IIP basically tells you if IIP is good, the quarterly GDP data would be good. Now,
this purchasing managers index, his job is to see if he needs to purchase more raw material and keep it in the godown of the company. If he is purchasing more raw material, definitely factory will be running, factory will start working. Okay, factory will run, so that is why he is purchasing raw material. कच्चा माल तभी खरीदा जाएगा जब आगे फैक्ट्री में उत्पादन करना है. If the factory is going to produce, and then finally if the factories are going to produce, if the 8 core industries in India are going to produce, that means other industries, other factories are also going to produce. That means the GDP number would be good. So we can say that PMI Purchasing Managers Index is a prelude, ये एक प्री इंडिकेटर है जो ये बताता है कि IIP अच्छा होगा या बुरा होगा. अगर ये लोग ज्यादा परचेज कर रहे हैं तो मतलब ये अच्छा होगा. अगर ये लोग कम परचेज कर रहे हैं, मैनेजर्स, परचेजिंग करने वाले, रॉ मटेरियल मैनेजर हम इसको कह सकते हैं. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग PMI स्लाइड्स इन मई, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग PMI गिर रहा है तो जॉब लॉसेस बढ़ रहे हैं. राइट, इंडेक्स एट 50.8 नियर्स स्टैग्नेशन. इंडेक्स नंबर अगर 50 से अबव होता है तो वो अच्छा माना जाता है, इसका मतलब कि ग्रोथ ज्यादा होगी. लेकिन अगर ये 50 से नीचे होता है, इसका मतलब बहुत ड्रास्टिकली चीजें गिर रही हैं. ठीक है, कभी कभी ये 52 भी हो जाता है, लेकिन नंबर ऑफ 50, अ रीडिंग ऑफ 50.8 तो चलो 50 से प्लस है. रीडिंग ऑफ 50 इंडिकेट्स नो चेंज एट ऑल. क्लियर? सो हियर इट इज रिटन, आई एम रीडिंग इट आउट फॉर योर prelims oriented knowledge also. A reading of 50 indicates no change. Point to be noted here. Okay, lack of work, गुड्स प्रोड्यूसर्स रिड्यूस्ड हेड काउंट्स अगेन. जो गुड्स प्रोड्यूस करने वाले वर्कर्स हैं उनका हेड काउंट, हेड नंबर, कितने सर काम कर रहे हैं वो कम हो रहा है नंबर. पावर कंजम्पशन सीज 8.2% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ. नॉट ऑफ मच रेलेवेंस. ओके, इन्फोसिस और ये सब. इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है आज थोड़ा सा हम इसको समझेंगे. NBFCs एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज फीलिंग द हीट ऑफ सेकेंड वेव. इकरा जो हमारी रेटिंग एजेंसी है, उनका ये कहना है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो घर लेने के लिए लोन देती हैं, उनके लोन देने की प्रक्रिया में कमी देखने को मिल रही है. ऑटो सेल्स डिक्लाइन फ्रॉम अप्रैल लेवल बिकॉज मई में सेकेंड वेव का सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखा गया कोविड-19 की सेकेंड वेव का, तो ऑटो सेल्स गिरती हुई. अवेयरनेस के लिए ठीक है, डन. शुगर न्यूज के बारे में किसी और दिन डिटेल्ड मैनर में वी विल बी टॉकिंग अबाउट शुगर न्यूज इन सम अदर DNA lecture. Now coming directly to the editorials, guys, without much ado, jumping to the editorials, I'll be giving you a summary of each and every editorial. COVID diplomacy 2.0, a different order of tasks. So here Indian diplomacy will have to handle the fallout of vaccine collapse and bio research regulations. So not much of the relevance for our purpose. India, which has now begun to speak up on the issue, must call for a more definitive answer and also raise its voice for a stronger convention to regulate any research that could lead by accident or by design, that could lead to something as diabolical as the current pandemic. अब रिसर्च के बेनिफिट्स कोविशील्ड वैक्सीन इंडिया को नहीं मिल रही है, तो राइटर इज बेसिकली सेइंग दैट वैक्सीन कोलैप्स की वजह से WTO के नॉर्म्स को जो इंडिया चैलेंज कर रहा है वो इंडिया को और अग्रेसिवली करना पड़ेगा. इंडिया शुड keep up the ante against the existing norm of patents. Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. India has been waging a battle with these companies, right? So Ministry of External Affairs had to deal with the internal health concerns while galvanizing help from abroad for others, right? It did not help that medical protocols to treat COVID-19 have changed constantly. तो ये सारी जो दिक्कतें हमने अभी देखा कि कल हमने पेटेंट्स वेवर की जो बात करी थी, पेटेंट्स वेवर मिलने के बावजूद भी मेडिसिन बनाने के लिए रॉ मटेरियल नहीं है, और कंपल्सरी लाइसेंसिंग वाली जो मेडिसिन हैं उसमें भी दिक्कत आ रही है, राइट? सो दीज थिंग्स आर हैपनिंग. नाउ वी आर गोइंग टू डील विद दिस एडिटोरियल. Tenuous revival, creating jobs and boosting incomes along with vaccination can sustain the economy. NSO data पे ये article है. We will be dealing with this editorial also at last. When 2 is too little, this is on China's population control policies, relaxation in China's population control. This editorial basically gives you a mains question. What is the mains question?
What is the impact of pandemic on child labor or overall impact on children in general? Not only the child labor but overall distance learning और कोविड की वजह से जो चीज़ें लेबर या बच्चों में चाइल्ड लेबर में इन पर्टिकुलर देखने को मिली हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. दिस इज अनदर एडिटोरियल. Net FDI as a ratio of GDP and fixed investment has gone down. राइटर ये कह रहे हैं कि FDI अगर हम ध्यान से देखें तो FDI डिक्लाइन हुई है. बट व्हाट इज इट दैट एक्सप्लेन्स दैट इंक्रीज इन द FDI इनफ्लोज? ऐसा क्यों कह रही है सरकार कि 10% FDI इंडिया में ज्यादा आई है? तो आज इस आर्टिकल को बेसिस मानते हुए वी विल अंडरस्टैंड the difference between FDI and FII very briefly, and then we will understand why the Ministry of Commerce or Ministry of Statistics is saying that FDI has come more by 10%, whereas writer says actually it hasn't happened. Now this article, the fatal war on transparency, official secrecy on pandemic policies aggravates the crisis. Writer is saying that Modi government is not revealing the details under RTI, so they should come out with the details on RTI as to how much royalty is being paid to the government agencies like ICMR. Indian Council on Medical Research is earning 5% royalties on medicine. Okay, Covaxin has reached private hospitals as among the most expensive vaccines in the world at over rupees 1200 a dose. तो इस पे क्लैरिटी क्या है? गवर्नमेंट की कोई ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कोई भी RTI क्वेरीज आंसर क्यों नहीं की जा रही? Had this article been about RTI in general, then this would have been fine. We could have dealt with it. But now this article is saying that in the face of the pandemic, it's war on transparency. Government's war on transparency brings fatal consequences. Okay, brazen denials marks its responses to RTI queries. सीधा सीधा मना कर दिया जा रहा है कि हम कुछ आंसर नहीं करेंगे. तो इसके प्रति राइटर का आक्रोश हेयर हमारे लिए काम का नहीं है. ये द इकोनॉमिक टूल किट रिवील्ड. RBI ने कितनी एडेप्टली, कितनी सावधानी से कितना अच्छा रोल निभाया है पिछले एक साल में. RBI की एनुअल रिपोर्ट के ऊपर लिखा गया ये आर्टिकल ये बताता है कि RBI ने कोई कसर नहीं छोड़ी इकोनॉमिक रिवाइवल के कॉज में. पैंडेमिक के चलते इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए RBI ने जो करना था, RBI ने अपनी टूल किट में से, आर्मरी में से हर वो औजार निकाला. रेट कट, TLTRO, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस एंड वेरियस अदर मेजर्स. बट नाउ जो काम है, फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है, फिर भी इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है? RBI ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में ये एक्सप्लेन नहीं किया. इसका रीजन राइटर ने कहा है कि गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी में है, क्योंकि RBI ने रेट कट तो कर दिया लेकिन आगे चीजें नहीं बढ़ पाई. डिमांड जो से बढ़नी चाहिए थी, जैसे ग्रेट डिप्रेशन में भी यही हुआ था. पैसे तो दिए गए, रेट कट कर दिया गया कि अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो मैं बोरो कर सकूं, लेकिन डिमांड ना होने की वजह से चीजें नहीं आगे संभल पा रही. इसी वजह से इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है? इन्फ्लेशन इसलिए बढ़ रहा है, लोन मिल रहा था, इकोनॉमिक मॉनेटरी पॉलिसी लोन देने को रेडी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया RBI ने, लेकिन फिर भी चीजें आगे नहीं बढ़ी. क्यों नहीं बढ़ी? लोन लेगा कौन? अगर कोई लोन नहीं लेगा तो प्रोड्यूस क्यों करेगा? प्रोड्यूस नहीं करेगा तो सप्लाई में डिमांड सप्लाई मिसमैच होगा और रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ेगा. तो स्टार्ट करते हैं. ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ चाइल्ड लेबर इज इन इंडियाज हैंड्स. तो यहां पे लिखा है ट्रू एक्सटेंट ऑफ इंपैक्ट ऑफ COVID-19 पैंडेमिक ऑन child labor is yet to be measured, but all indications show that it would be significant as children are unable to attend the schools and parents are unable to find work. However, not all the factors that contribute to child labor were created by the pandemic. Most of them were pre-existing and have been exposed or amplified by it. पैंडेमिक. मतलब राइटर क्रिटिसाइज ये कर रहे हैं कि जो चाइल्ड लेबर को बढ़ावा देने वाले फैक्टर थे ना, वो पहले से प्री एग्जिस्टिंग थे. कोविड ने तो सिर्फ उन्हें एम्पलीफाई कर दिया. चलो यह क्रिटिसिज्म हमें काम का नहीं है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्वे सजेस्ट दैट 95% of the children in the age group of 6 to 13 years are attending educational institutions, formal and informal, while the corresponding figures for those in the age group of 14 to 17 years is
79.6. How can you utilize this point, my dear students? You can utilize this point while writing an essay on right to education also. Right to Education Act has completed its 10 years, more than 10 years, but no question has been asked on the analysis of RTE Act. The other day in the prelims rescue batch, I was explaining this. We will cover this RTI Act and its analysis through Live Mint or some other newspaper some other day. But how can we use this piece of data here? 6 to 13 years के लिए तो एक्ट है. After 86th Constitutional Amendment Act, this is after the RTE, Right to Education became a fundamental right, Article 21A. 6 to 14 years का तो भला हो गया, लेकिन 14 से 17 में और 0 से 6 में यहाँ पे मैल न्यूट्रिशन देखने को मिल रहा है. और यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है इस एज ग्रुप में? इस एज ग्रुप में क्या देखने को मिल रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट, चाइल्ड लेबर, ठीक है, और dropping in the enrollment ratio of these children in the or these adolescents in the colleges. ये बच्चे कॉलेज में एनरोल नहीं कर पा रहे. So this is an indication that we need to do something about children in this bracket and malnutrition के लिए in this bracket. Now, Government of India का अपना सर्वे ये बता रहा है 95% of children in the age group of 6 to 13 years are attending educational institutions. लेकिन जैसे ही हम 14 to 17 की बात करते हैं, this comes down by around 14 percentage points. 14% गिर जाता है, यानी कि 14% बच्चे कम स्कूलों में जा रहे हैं, क्योंकि राइट टू एजुकेशन सिर्फ 6 to 14 ईयर्स के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है. लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया रिमेन वल्नरेबल फेसिंग फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिस्क्स टू अ हेल्दी डेवलपमेंट. सेंसस का डेटा है. इस आर्टिकल के फर्स्ट 2-3 पैराग्राफ्स में बहुत ज़्यादा डेटा है, जो कि आप नोट कर सकते हो अपने किसी भी आंसर को लिखने के लिए. एंड इस पे 1-2 क्वेश्चंस आंसर्स भी मैंने बनाए हैं. वी विल सी दैट ऑल्सो. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज आंसर हाउ मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड येस्टरडेज क्वेश्चंस. जस्ट स्क्रॉल डाउन, इसको स्क्रॉल डाउन करो, नीचे तुम्हें डीएनए के 1 जून के डीएनए के नीचे क्वेश्चंस दिख जाएंगे. 3-4 क्वेश्चंस हैं 1940 के डिप्रेशन में, ग्रेट डिप्रेशन में, ठीक है आकाश. तो ये एडिटोरियल है. यस, गुड मॉर्निंग, ठीक है. और इसके नीचे तुम्हें क्वेश्चंस दिख जाएंगे, मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस. तो यू कैन पोस्ट द आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस एज वेल इन द डिस्कस प्लेटफॉर्म DISQUS. तो उसको आंसर जरूर करना. अब यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया रिमेन वल्नरेबल फेसिंग फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल. 2011 के सेंसस के बेसिस पे 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ बच्चे वर्किंग इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 14 ईयर्स, आउट ऑफ होम 80 लाख बच्चे जो है रूरल एरियाज में हैं, मेनली एंगेज्ड एज कल्टिवेटर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स. दिस इज द गवर्नमेंट्स ऑफिशियल, गवर्नमेंट्स ओन डेटा ऑफ सेंसस 2011. वाइल मल्टीपल डेटा, काफ़ी सारे डेटा सेट्स हैं जो वेरी करते हैं, डिफरेंस आ रहा है जिनमें एनरोलमेंट और अटेंडेंस रेशियोज को लेके. यूनेस्को एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन 2011 सेंसस ऑफ इंडिया रिकॉर्डेड 38 मिलियन यानी कि 3 करोड़ 80 लाख चिल्ड्रन एज आउट ऑफ स्कूल. यूनेस्को, यू शुड जॉट डाउन दिस डेटा. यूनेस्को का डेटा है तो यू कैन रिलाई ऑन दिस एंड it carries a weight when you mention this type of data in your exam. एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे. वर्क परफॉर्म्ड may not appear to be immediately dangerous, but it may produce long-term and devastating consequences for their education, their skill acquisition and hence their future possibilities. Done है, ये सारा कुछ इसमें कवर्ड है. यूनिसेफ का सर्वे दे रखा है. मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और यूनिसेफ ने जॉइंटली एक सर्वे करवाया था. उसके अकॉर्डिंग भी less than half of the children in the age group of 10 to 14 years have completed primary education. So this data can be used for assessment of RTE also. Assess the performance of RTE, right to education. Clear? So this data is itself telling that primary education में दोनों का data है. MOWCD भी इसमें included है. तो what else do you need to criticize RTE? Now, here are some other, one piece of good news is that child labor in India decreased in the decade 2001 to 2011, and this demonstrates that right combination of policy and programmatic interventions can make a difference. Policy interventions such as Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act,
Right to Education Act, midday meal scheme have paved the way for children to be in schools along with guaranteed wage employment, unskilled for rural families. Okay, convergence of government schemes, concerted efforts towards the convergence of government schemes is also the focus of implementation of National Child Labour Project. So National Child Labour Project, please jot down, we will be dealing with some salient facts of National Child Labour Project, not today but in the coming days. Then India's intention is clear. अब तुम्हें ये पता होना चाहिए National Child Labour Project का major reason क्या है? Synergies. Major issue क्या है? Establishing the synergies between various government programs. Okay, synergies ना होने की वजह से schemes are sometimes seen to be working at cross purposes. एक दूसरे से काउंटर करती हुई schemes नजर आती हैं. तो इसीलिए NCLP का मेजर रीजन रैशनल ही यही है. रैटिफाइंग, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये इंटेंशन कहां से नजर आती है? रैटिफिकेशन ऑफ 3 इंपॉर्टेंट ILO कन्वेंशंस. कन्वेंशन नंबर 138, 182. Indian government further demonstrated its commitment to the elimination of child labor, including those engaged in hazardous occupations. फिर आते हैं पेंसिल पोर्टल पे. पेंसिल पोर्टल क्या है? दिस इज पेंसिल पोर्टल. इससे पहले कि तुम सो जाओ, पेंसिल पोर्टल ऑब्जेक्टिव्स, इफेक्टिव एनफोर्समेंट. इसका फुल फॉर्म देखो, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट. प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ नो चाइल्ड लेबर. पेंसिल पोर्टल, बच्चे जो हैं वो पढ़ पाएं. इफेक्टिव एनफोर्समेंट के लिए, बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए, जनरल पब्लिक को इन्वॉल्व करते हुए. अगर आपको कोई बच्चा लेबरर के वे में घर में छोटू के नाम पे काम करता हुआ दिखाई देता है, या किसी ठेके पे, शराब के ठेके पे, या किसी रेस्टोरेंट में, ढाबे पे काम करता हुआ दिखाई देता है, तो आप पेंसिल पोर्टल पे जाके फोटो अपलोड करके उस दुकान का या उस ढाबे का नाम अपलोड कर सकते हो. ठीक है, तो उस बच्चे को रिहैबिलिटेट किया जाएगा. ऐसा नहीं है कि उस बच्चे को सिर्फ छुड़वा दिया जाएगा और दुकानदार पे पेनल्टी लगाई जाएगी. नहीं, उस बच्चे को रिहैबिलिटेट करने के भी प्रोविजंस इसमें हैं. फैसिलिटेट्स द कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस स्कीम्स आल्सो. मॉनिटरिंग ऑफ नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट. राइट, so these things have been done under the pencil portal. We are going to see some questions also. अब पेंसिल पोर्टल से आगे बढ़ते हुए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आता है ये. पेंसिल पोर्टल कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बट इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. क्लियर? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है. इट अलाउज द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, law enforcement agencies and NGOs to share information and coordinate on child labor cases. It has completed 2 years recently. Okay, it was brought about in 2019. So it has completed its 2 years. While the child labor, it was brought about in 2018. So 3 years it has completed. While the child labor has declined during the past decade globally, estimates indicate that the rate of reduction has slowed by. चाइल्ड लेबर कम हो रही है वर्ल्ड ओवर, ठीक है, ग्लोबली अगर हम देखें, लेकिन इसकी पेस कम हो गई है. दीज लाइन्स आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एनी इंडिया सेंट्रिक आंसर टू अ यूपीएससी क्वेश्चन, बट व्हेन यू आर राइटिंग एनी एसे आपको ग्लोबल पैटर्न थोड़ा सा बताना होता है. दीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेंड्स हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट when developing India's policy. ग्लोबली जो चल रहा है उस ग्लोबल चीज से एक अंदेशा लेते हुए, taking a cue from the global, what is happening globally, India should develop its own policies and programs to respond to the impact of COVID-19 crisis on children. बच्चों पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड लॉकडाउन की वजह से ये सब हुआ है. अच्छी अच्छी चीजें इसमें लिखी हैं. अब आते हैं सीधा पॉइंट्स पे. India experienced slower economic growth and rising unemployment even before the pandemic. Subsequent lockdowns ने situation और बद से बदतर कर दी है, back to worse. Now, with increased insecurity, lack of social protection and reduced household income, children from poor households are being pushed to contribute to the family income with the risk of exposure to exploitative work.
विद क्लोजर ऑफ स्कूल्स एंड चैलेंजेस ऑफ डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है, चिल्ड्रन में ड्रॉप आउट। मैंने इसको क्या किया है, क्वेश्चन सा एक बना दिया यहाँ पे, आप देखोगे इसको, मेंस क्वेश्चन, असेस द इंपैक्ट ऑफ पैंडेमिक ऑन चिल्ड्रन इन इंडिया, इंक्रीज्ड इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, विद इंक्रीज्ड इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी लैक ऑफ सोशल प्रोटेक्शन एंड रिड्यूस्ड हाउसहोल्ड इनकम, चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर हाउसहोल्ड्स आर बीइंग पुश टू कॉन्ट्रीब्यूट, दे आर, उनको ये कहा जा रहा है कि बच्चे स्कूल तो जा नहीं सकते और देखो पापा की नौकरी चली गई, सैलरी कट हो गई, चलो तुम काम पे लग जाओ। खासकर जो डेली वेज अर्नर्स हैं वो लोगों के घरों में ये हो रहा है। चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर हाउसहोल्ड्स आर बीइंग पुश टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द फैमिली इनकम with the risk of exposure to exploitative work. Challenge of distance learning. With closure of schools and challenges of distance learning, children may drop out, leaving little scope for return unless affirmative and immediate actions are taken. जब तक अब बच्चों का क्या है, ड्रॉप आउट हो जाएंगे तो फिर दोबारा वापस आने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि गैप ईयर्स आ जाते हैं, है ना, कि छोड़ो यार अब छुट्टी हो गई स्कूल से तो क्या ही करना है, राइट। डिजिटल डिवाइड एक और बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक रिपोर्ट है एनएसएस, नेशनल सैंपल सर्वे रिपोर्ट नंबर 585, अगेन द राइटर हैज साइटेड द गवर्नमेंट डेटा हियर। तो हाउसहोल्ड सोशल कंजम्पशन ऑन एजुकेशन इन इंडिया suggests that in 2017-18 only 24% of Indian households had access to an internet facility, okay, और रूरल एरियाज में सिर्फ 15% लोगों के पास वायबल इंटरनेट कनेक्शन है, अर्बन एरियाज में 42%। सो टोटल इंडियन हाउसहोल्ड जो हैं उनमें से सिर्फ 24% के पास इंटरनेट है। तो ये सारी सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू keep the children in education, keep the children in schooling, और अगर स्कूलिंग नहीं होगी तो फिर चाइल्ड लेबर का खतरा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। पॉइंट्स इसमें और भी लिखे जा सकते हैं, वी कैन राइट 5 to 6 more points in this answer, but I am trying my level best to limit the duration of DNA. ये नहीं हो कि DNA की ड्यूरेशन बढ़ती जाए। What we are doing is we are trying to boil down every editorial into a question and trying to write the answer on the basis of the points given in that particular editorial itself. बाहर जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा स्कोप हो जाता है। अब ये 2-3 पॉइंट्स मैंने आंसर में इनकॉर्पोरेट कर लिए। प्रथम की एक रिपोर्ट आती है, प्रथम इज द नेम ऑफ द एनजीओ जो बच्चों के ऊपर काम करता है, चाइल्ड सेंट्रिक एनजीओ प्रथम, brings about a report every 2 years. तो Acer 2020 survey highlights that 1/3 of the total enrolled children received some kind of learning materials from their teachers during the reference period. Okay, only 1/3 of the children they received the learning material. Challenges are significant and manifold, but it is not impossible to meet these challenges if the right level of commitment comes. ठीक है, तो ये सारा कुछ बोल बच्चन है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होनी चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए गवर्नमेंट के बीच में, एम्प्लॉयर्स के बीच में, ट्रेड यूनियंस के बीच में, कि बच्चों को हायर ना किया जाए, ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। व्हाई दिस एडिटोरियल हैज अपीयर्ड इन द लाइट ऑफ द Prime Minister's announcement that they are going to create a scheme for orphaned children out of PM CARES money, right? We need a strong alliance paving our way towards ending child labor in all its forms. हमारा overarching objective क्या है? We need to abolish child labor in all its forms towards by 2025. Okay, so this is there. Now प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज लॉन्च पेंसिल प्लेटफॉर्म फॉर एनफोर्समेंट ऑफ नो चाइल्ड लेबर पोर्टल एट नेशनल कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पेंसिल पोर्टल। पेंसिल इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म दैट एम्स एट इन्वॉल्विंग सेंटर, स्टेट्स, district governments, civil society and general public in achieving the target of child labor free society. Standing operating procedure was also launched which aimed at creating a ready reckoner for trainers, practitioners and monitoring agencies. So try to answer this question. I will answer this question for you. This is the explanation for this. Pencil platform क्या है ये भी हमने देख लिया, right? Now, though this is not an opportune moment to read this particular act, Child Labor Amendment Act, but given the nature of the editorial, given the title of the editorial, I have incorporated this mains oriented
data for you or prelims oriented facts for you. Child labor, when you read article 22, article 23, article 24, okay, basically 23 and 24, so it prohibits the engagement of children in all occupation. And when you read article 21A, so child labor amendment act is prohibitory in nature. RTE Act is positive in nature, it is negative. Given the social moorings of India, given the social context of India, mere prohibition is not going to work. जिस देश में काफ़ी फैमिलीज गरीब हैं, हम सिर्फ प्रोहिबिशन से काम नहीं चला सकते. चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986 का ये सिर्फ प्रोहिबिट करता था, लेकिन फैसिलिटेशन कुछ नहीं था, पॉजिटिव रीजंस कुछ नहीं थे. बच्चों के काम करने के पीछे उनको मज़ा नहीं आता, लेकिन उनकी पारिवारिक फैमिलियल सिचुएशन ऐसी है. तो इसी को ध्यान में रख के इस एक्ट को, अमेंडमेंट एक्ट को 2016 को लाया गया था. द एक्ट इम्पोजेज अ फाइन ऑन एनीवन हु एम्प्लॉयज और परमिट्स एडोलिसेंट्स टू वर्क. इवन कोई एडोलिसेंट्स को काम करने के लिए बोलता है 14 से 18 साल, ठीक है. तो ये सारा कुछ यहाँ पे रखा गया. एडोलिसेंट रेफर्स टू 18 ईयर्स, चिल्ड्रन टू दोज अंडर 14 ईयर्स. तो ये सारा कुछ है. एडोलिसेंट्स को भी काम करना अलाउड नहीं है, 18 साल वालों को भी काम करना अलाउड नहीं है. प्रॉब्लम्स हैं इस एक्ट में. जो नया एक्ट लाया गया है, इट हैज स्लैश्ड द लिस्ट ऑफ हैजिडस ऑक्यूपेशन. पटाखे बनाने की कंपनी, फैक्ट्री में काम करना, या शराब बनाने की फैक्ट्री में, या फिर बीड़ी, पान मसाला जैसी फैक्ट्री में काम करने को बच्चों को टोटल प्रोहिबिशन था. पहले ऐसी कंपनीज जो थी जहां पे बच्चे को काम करना मना था वो 83 थी, लेकिन एक्ट ने इसे कम कर दिया, ठीक है. तो इसमें सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज रखी गई हैं. कौन कौन सी? माइनिंग, एक्सप्लोजिव एंड ऑक्यूपेशंस मेंशन्ड इन द फैक्ट्रीज एक्ट. उसके अलावा बच्चा कहीं भी, child is free to work anywhere. This means that work in chemical mixing units, cotton farms, battery recycling units and brick kilns among others has been dropped. That means children can work in these factories or units, है ना. Further, even the ones listed as hazardous activities can be removed not by the act, not by the parliament, but by the रूल्स मेड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, ठीक है. तो ये सारे इसमें लेकुने हैं एक्ट में. दिस इज अबाउट पेंसिल पोर्टल. नाउ कमिंग टू अनदर एडिटोरियल, व्हाट एक्सप्लेन्स द इंक्रीज इन एफडीआई इनफ्लोज. एफडीआई इनफ्लोज में जो इंक्रीज देखने को मिल रही है, उसको क्या चीज एक्सप्लेन करती है? अनप्रेसिडेंटेड शॉर्ट टर्म फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स. 2 तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, पहले इसको समझेंगे. पोर्टफोलियो क्या होता है? यूपीएससी का सिलेबस जो आप पढ़ रहे हो, दैट इज अ पोर्टफोलियो. यूपीएससी हैज क्रिएटेड अ पोर्टफोलियो फॉर यू. कैसे? तुम थोड़ी देर जीएस पढ़ोगे, थोड़ी देर पॉलिटी पढ़ोगे, थोड़ी देर इकोनॉमी पढ़ोगे, 250 मार्क्स तुम्हारे, 250 मार्क्स पॉलिटी को अलॉट किए गए हैं, कुछ इस तरह से, है ना. तो तुम जो कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो वो भी इस तरह से करते हो कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट में, मेरे पास जो पैसे हैं 1 लाख रुपीस, मैं उसमें से रिस्क फ्री पोर्टफोलियो, यानी कि मैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में 25% पैसे इन्वेस्ट करने जा रहा हूं. मैं लो रिस्क पोर्टफोलियोज. पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो का अपना मतलब है म्यूचुअल फंड, एलआईसी पॉलिसी, बैंक की फिक्स डिपॉजिट, इनमें मनी इन्वेस्ट करना. इन्वेस्टिंग मनी इन दिस फॉर्म. तो इससे क्या फायदा होगा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से? कि मेरा पोर्टफोलियो ऐसा है कि अगर गोल्ड, मैंने कुछ पैसा गोल्ड में लगा दिया, कुछ पैसा मैंने सिल्वर में लगा दिया, कुछ पैसा मैंने म्यूचुअल फंड्स में लगा दिया, ठीक है, कुछ पैसा मैंने इक्विटी शेयर्स में लगा दिया. अगर मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहिए और मेरी एज के अकॉर्डिंग, अगर मैं 30 ईयर्स के अंडर हूँ, तो मेरी एज के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना चाहिए? ज़्यादा रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि अभी मेरे ऊपर जिम्मेवारी कम है. तो मैं क्या करूँगा? जहाँ से मुझे ज़्यादा ग्रोथ मिल सकती है, मेरा पैसा दिन रात ज़्यादा बढ़े, इंक्रीज हो, तो मैं इक्विटी शेयर में लगाऊंगा. लेकिन रिस्क को ध्यान में रखते हुए कि शेयर मार्केट कभी भी नीचे गिर जाती है, स्टॉक्स कभी भी नीचे गिर जाते हैं, तो इसलिए मैं 50% इनमें लगाऊंगा. लेकिन 50% में से, बाकी 50% में से मैं 10% गोल्ड में लगा दूंगा. फिर उसके बाद बाकी में मैं कुछ फिक्स डिपॉजिट में लगा दूंगा कि मुझे ज़रूरत पड़ गई तो, राइट. इसको पोर्टफोलियो कहते हैं. दूसरी तरह की, इसको हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा पार्ट होता है, एक टाइप होती है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FIIs या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 2 टाइप के हो सकते हैं, FII जो बाहर से आते हैं, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हमारी कंट्री के होते हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. फॉरेन का कौन होगा? LIC ऑफ USA, म्यूचुअल फंड ऑफ USA, कोई भी म्यूचुअल फंड, सिटी बैंक म्यूचुअल फंड, बैंक ऑफ अमेरिका का म्यूचुअल फंड, इस तरह से, ठीक है. नाउ
राइटर ये कह रहे हैं, बेसिकली इस आर्टिकल में ये इशू है कि राइटर का कंसर्न ये है टॉप टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज इन 2020-2021, यानी कि जो अभी साल खत्म हुआ है ना 31 मार्च 21 को, उसमें यह कहा गया है कि 10% ओवर द प्रीवियस ईयर, ठीक है, बढ़ी है एफडीआई बढ़ी है। तो मतलब ये कहने का मतलब ये है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स हम कर रहे थे उनका रिजल्ट अच्छा निकला है, बट ऐसा तो है नहीं, राइट। तो राइटर ने इस सारे डेटा को डीमिस्टिफाई किया है, टुकड़ों में बांट के देखा है कि एक्चुअल में एफडीआई इतनी आई भी है या नहीं। तो इसका जो कंक्लूजन निकला है वो ये निकला है कि एफडीआई इतनी नहीं आई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इतनी आई है। अब एफडीआई क्या होती है? जब कोई कंपनी इंडिया में आके, जैसे अमेजन इंडिया में आई, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब ये पैसा लॉन्ग टर्म इंडिया में रुकेगा, राइट, तो क्योंकि उन्होंने प्लांट लगाया, बिल्डिंग लगाई, अमेजन नाम लिखा, फ्लिपकार्ट, चलो फ्लिपकार्ट अभी रुक जाओ, अमेजन है या फिर कोई और बड़ी कंपनी जो इंडिया में परमानेंट आके बस गई, तो इससे हमारी कंट्री में रोजगार को, जीडीपी फॉर्मेशन को, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कितना पैसा उस कंपनी ने इंडिया में बिल्डिंग्स में, एसेट्स में, कंप्यूटर्स में, कारें खरीदने में, बड़े बड़े जनरेटर खरीदने में, जो कैपिटल एसेट्स हैं वो खरीदने में इंडिया में इन्वेस्ट किया। लेकिन इसके विपरीत, इसके ओपोजिट, जब एफआईआई आती है, तो एफआईआई कैसे आती है? एफआईआई में सिंपल ये होता है, जो हमने अभी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट समझा, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वाले लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ ये करते हैं कि अच्छा रिलायंस के शेयर्स बढ़ने वाले हैं तो चलो रिलायंस के शेयर्स में पैसा लगा देते हैं। ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, इसने, या पोर्टफोलियो इन्वेस्टर समझ लो, इसने भारत के स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगा दिया। आज इसने पैसा लगाया है तो कल ये पैसा निकाल भी लेंगे, क्योंकि इन्होंने अपना कोई ऑफिस नहीं बनाया अमेजन की तरह जो इन्हें में जाने में दिक्कत होगी। इनके हाथ में एक सूटकेस है, बस वो सूटकेस से पैसे इन्होंने इंडिया में लगाए, अपने बैंक से निकलवा के, और शेयर्स परचेज कर लिए। रिलायंस का शेयर बढ़ रहा था तो रिलायंस का बढ़ा लिया, ठीक है, और किसी और कंपनी का बढ़ रहा था तो टाटा का खरीद लिया। जब ये बेच के जाएंगे तो हमारा सेंसेक्स नीचे गिरने लगता है, क्योंकि ये टेम्परेरीली आए हैं, इनको आज यहाँ मजा आ रहा है, पैसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, $100 लगाते हैं तो $115 हो जाते हैं। लेकिन कल को अगर इनको चाइनीज़ स्टॉक मार्केट में मज़ा आएगा तो ये वहाँ चले जाएंगे। इसके ओपोजिट एफडीआई क्या करती है? एफडीआई एक बार आ गई, अब अमेजन ने ये थोड़ी ना करना है कि अच्छा इंडिया में मौसम अच्छा नहीं है, इंडिया में कोविड के केसेज आ रहे हैं, चलो कहीं और चलते हैं, नहीं। या फिर ये तो है नहीं कि एफडीआई, यूएसए के फेड रिजर्व बैंक ने अगर वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया तो ये फटाफट से इनको वहाँ भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो पैसे लगाए थे $100, उस पर पहले इन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा था 3%, तो इनको यहाँ लगाने में फ़ायदा था। लेकिन अब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 4% हो जाएगा तो ये कंपेयर करेंगे कि इतना फ़ायदा क्या इंडियन स्टॉक मार्केट से मिल रहा है कि हम 4% रिटर्न दें एक साल की। अगर इनको नहीं मिलेगा तो ये वापस चले जाएंगे। लेकिन एफडीआई में क्या है, अमेजन ने अगर लोन ले लिया 3% पे और इंडिया में कंपनी लगा दी, तो क्या अमेजन रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने पे चली जाएगी? नहीं जा सकती। एकदम से बिल्डिंग, ज़मीन, ईंट, सारा कुछ बेचना आसान नहीं है, जनरेटर या कंप्यूटर्स नहीं बेचना आसान है ना। अमेजन इंडिया में रहेगी, तो ये फायदा होता है एफडीआई का। एफडीआई इज मोर एंड्योरिंग इन नेचर। अब हमने ये समझ लिया बेनिफिट क्या है। तो अब राइटर ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार ये दिखाना चाह रही है, द गवर्नमेंट इज एक्चुअली ट्राइंग टू प्रोजेक्ट दैट एवरीथिंग इज हंकी डोरी, सब कुछ खुशहाल है, यहाँ पे माहौल एकदम बढ़िया है, चमाचम इंडिया शाइनिंग है, ठीक है, न्यू इंडिया है। फिगर्स without detailed statistical information, measures taken by the government on the fronts of FDI, policy reforms, investment facilitation and ease of doing business have resulted in increased FDI inflows into the country. ठीक है, छोटी सी जो प्रेस रिलीज आई उसमें ये हाईलाइट किया गया इंडस्ट्री एंड स्टेट स्पेसिफिक फॉरेन इन्वेस्टमेंट फिगर्स को। हालांकि जो चीज़ें हाईलाइट करनी होती हैं कि एफडीआई किस प्रकार से आई, कौन सी इंडस्ट्री कहाँ आई, वो डिटेल्स नहीं दी गई। ये बता दिया गया कि इतनी इस इंडस्ट्री में इतनी एफडीआई आई है, इस स्टेट में इतनी एफडीआई आई है, विदाउट द डिटेल्ड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। आरबीआई बुलेटिन जो आया विच वॉज रिलीज अ वीक अर्लियर हैज द डिटेल्स। अब आरबीआई ने अपनी जो एनुअल रिपोर्ट और बुलेटिन जो एफडीआई पे इशू किया उसमें डिटेल्स हैं, लेकिन शॉर्ट प्रेस रिलीज जो गवर्नमेंट ने इशू करी उसमें डिटेल्स को छुपा लिया गया ताकि पोल ना खुल जाए।
These RBI details are conceptually more transparent and consistent. मतलब ये समझ में आती हैं. टेबल नीचे जो दिया गया है वो ये समझाता है. देखो 2020-21 की बात करेंगे. ग्रॉस इनफ्लोज यानी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आइटम नंबर 3 एंड आइटम नंबर 5 को ऐड करके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू इंडिया प्लस रिपैट्रिएशन डिसइन्वेस्टमेंट. ठीक है, यानी कि दोनों को ऐड कर दिया. रिपैट्रिएशन क्या होता है ये मैं अभी समझाऊंगा. तो हमारे पास पैसे कितने आए हैं 81,000 करोड़. राइट, ग्रोथ कितना है 10% के लगभग हो गया अगर पिछले 2 सालों को कंपेयर करें, है ना, 2019 को और 2020 को. तो 74,000 का 10% लगभग 81,721 करोड़ हो जाता है. तो अब राइटर ये कह रहे हैं कि जो पैसा आया है, आगे देखोगे यहाँ पे, What accounts for gross inflows, जो हमने नंबर 1 देखा कि टोटल इनफ्लोज कितने आ रहे हैं. In the RBI report is the same as total FDI inflow in the press release identical to Commerce Ministry's estimate. Commerce Ministry ने जो gross inflow का मतलब लिया है, RBI ने अपने बुलेटिन में वही मतलब लिया है. लेकिन gross inflows में repatriation और disinvestment को डाल दिया गया है. इन दोनों को यदि अलग करके देखें, इफ वी डिसएग्रीगेट दीज टू, डिसएग्रीगेशन शोज दैट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू इंडिया हैज डिक्लाइंड बाय 2.4%. अब आप यहां पे देखो, डिसएग्रीगेशन जब हम करें तो अगर सिर्फ हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें ना, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2.4% कम हुआ है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो 0.8% बढ़ा है. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू इंडिया 4 और 6 को ऐड कर दें. एफडीआई जो इंडिया से चली गई, एफडीआई बाय इंडिया टू अदर कंट्रीज, जिसको हम आउटवर्ड एफडीआई कहते हैं. अब हमारी कंपनीज टाटा, बिरला, ये लोग भी तो बाहर पैसे लगाते हैं ना, यूएस में, ब्राजील में, कहीं पे. तो ये पैसा -13.0 हुआ है, यानी कि हमारी कंट्री से एफडीआई बाहर कम गई है. लेकिन हमारी कंट्री में जो नेट एफडीआई आई है इंडिया में वो 0.8% है. और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू इंडिया अगर हम देखें 4 और 6 को ऐड करके तो -2.4% है, क्योंकि 13 में से माइनस करके -2.4% आ रहा है. अब यहां पे दिक्कत क्या है, डिसएग्रीगेशन ये बता रही है इंक्रीज ऑफ 47% इन रीपैट्रिएशन और डिसइन्वेस्टमेंट. ये सरकारी डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है, ये वो लोग हैं जो जिन्होंने अपना पैसा देश से निकाल लिया, हमारी कंट्री में लगाया था. ठीक है, दिस एंटायरली अकाउंट्स फॉर द राइज इन ग्रॉस इनफ्लोज. इसका मतलब ये है देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन ग्रॉस एफडीआई इनफ्लो एंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया. एफडीआई को डिसइन्वेस्टमेंट कहना, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहना गलत हो जाएगा. रिपैट्रिएशन क्या है, एफडीआई इनफ्लोज इंक्रीजिंगली कंसिस्ट ऑफ प्राइवेट इक्विटी फंड्स which are usually disinvested after 3 to 5 years to book profits per its business model. अब यहां पे क्या हो रहा है कि जो स्टार्टअप्स में पैसा आता है, ठीक है, अब स्टार्टअप है बायजूस या उबर ओला के पीछे एक बहुत बड़ा बैंक है या इन्वेस्टमेंट कंपनी है फॉरेन की, चाइना की, जापान की, सॉफ्ट बैंक. उस सॉफ्ट बैंक ने उबर को या अनअकैडमी को या बायजूस को पैसे दिए, इन्वेस्टमेंट करी. अब जब अनअकैडमी और बायजूस 3 से 5 साल बाद, अभी तो वो बहुत हाई ग्रोथ दे रहे हैं इनको, इन्वेस्टर्स को 35%, 40%, है ना, इसलिए हजारों करोड़ों रुपए बायजूस, अनअकैडमी, उबर को दिए जा रहे हैं, स्विगी को दिए जा रहे हैं, जोमैटो को दिए जा रहे हैं. जब ये 35-40% सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वाला जो ग्रोथ रेट है वो कम होने लग जाएगा, तो इन्वेस्टर सॉफ्ट बैंक अपने पैसे निकाल लेगा, उसको मजा आना बंद हो जाएगा. 5-10% रिटर्न नहीं चाहिए होती. ये बड़े बड़े सॉफ्ट बैंक जैसी कंपनीज, चाइना, जापान, यूएसए की ये कंपनीज, फेसबुक जैसी कंपनीज स्टार्टअप्स को फाइनेंस करती हैं, क्योंकि स्टार्टअप्स में रिस्क ज्यादा होता है तो मुनाफा भी ज्यादा होता है. अब मुनाफा ज्यादा जब इनको होने लग जाएगा तो ये निकाल जाएंगे पैसा. ये परमानेंट नहीं है. कहने को ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आता है, डायरेक्टली शेयर्स खरीदे गए हैं कंपनी के, कंपनी में इन्वेस्ट किया गया, लेकिन स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग या कोई बिल्डिंग वगैरह यहां पे इन्वेस्टर ने, सॉफ्ट बैंक जैसे इन्वेस्टर ने अपनी नहीं लगाई. ठीक है, ये प्राइवेट इक्विटी फंड डू नॉट मेक लॉन्ग टर्म ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स. इन्होंने फ्लिपकार्ट में पैसा लगाया था, फ्लिपकार्ट चल पड़ी, बंसल्स जो फ्लिपकार्ट के सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनको हटाया, कंपनी वॉलमार्ट को बेच दी और चल पड़े. ये वाला पैसा इंडिया में ज्यादा आ रहा है. इसको स्ट्रिक्ट सेंस में एफडीआई नहीं कहते.
ठीक है, वी डू नॉट कॉल इट एज एफडीआई इन द स्ट्रिक्ट सेंस। कहने को ये एफडीआई का प्रोटोटाइप ही है, मतलब एफडीआई का एक नियर एग्जाम्पल ही है, राइट। लेकिन ये क्या है कि ना तो ये एफआईआई है, ना ये सही सेंस में, स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द टर्म में एफडीआई है, क्योंकि अमेजन ने अपना पैसा लगा के अपनी कंपनी खड़ी करी। अमेजन यूएसए से आया, उन्होंने अपनी कंपनी इंडिया में खड़ी करी, लेकिन यूएसए का फेसबुक किस में पैसा लगा रहा है? जियो में पैसा लगा रहा है। अब इसको आप एफडीआई कहोगे? जियो तो पहले से चल रही है। जियो में 10%, 9.9% हिस्सेदारी फेसबुक ने खरीदी 45,000 करोड़ रुपीस देके। आज फेसबुक को डेटा चाहिए जियो से, कल डेटा मिल जाएगा। इंडियन कस्टमर जो हमने जो आधार वेरिफिकेशन करा के फ्री में जियो के सिम लिए थे, है ना, वो डेटा इनको मिल जाएगा। फेसबुक अपनी एडवेंट भेजेगा, जब डेटा खत्म फेसबुक शेयर किसी और को बेच के चल देगा। समझ में आया? तो इसको हम सही सेंस में एफडीआई नहीं कहते। सिमिलरली राइटर ये कहते हैं कि अगर हम इसको नेट बेसिस पे मेजर करें, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू इंडिया माइनस एफडीआई बाय इंडिया और आउटवर्ड एफडीआई फ्रॉम इंडिया, एफडीआई जो इंडिया में आई और माइनस इंडियन कंपनीज जो बाहरले देशों में टाटाज वगैरह जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको माइनस कर दें तो 0.8% इंक्रीज हुई है। यानी कि हमारे इन्वेस्टर्स भी बाहर पैसा लगा रहे हैं ओवर द लास्ट ईयर। तो ये जो इंप्रेसिव 10% का इंक्रीज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने बताया कि देखो मोदी राज में सब अच्छा हो रहा है, एफडीआई आ रही है, ये कहां से आया? इट इज एंटायरली, ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन द अकाउंट ऑफ नेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, shooting up from $1.4 billion in 2019-20 to $36.8 billion next year। ठीक है, इसमें राइज देखो आप कितनी हुई, 2500% इंक्रीज हुआ है। फर्दर विद इन दिस नेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब नेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के 3-4 प्रकार के होते हैं। प्राइवेट इक्विटी जो हमने अभी समझा, जो स्टार्टअप्स में पैसा लगाता है, और दूसरा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हमारे कंट्री के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में से शेयर्स खरीदते हैं, डायरेक्ट कंपनी से डीलिंग नहीं करते। प्राइवेट इक्विटी क्या करता है? मार्क जकरबर्ग ने फोन लगाया मुकेश अंबानी को कि मुझे तुम्हारे जियो के शेयर्स खरीदने हैं 10%। दोनों आपस में प्राइवेट डील कर रहे हैं, प्राइवेट इक्विटी। अब मुकेश अंबानी की, अब दूसरे एग्जाम्पल में मुकेश अंबानी की कंपनी जियो के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं। ठीक है, जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड शेयर्स हैं वो आपने कुछ खरीद रखे हैं, मैंने कुछ खरीद रखे हैं, 4 लोगों ने कुछ खरीद रखे हैं। यहां पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, ये कहेगा कि मुझे 1000 शेयर्स चाहिए, तो आपके मेरे जैसे लोग बेच देंगे और ये 1000 शेयर्स, यदि एक शेयर 150 का था, ये 155 रुपए में खरीद लेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इससे क्या होगा? शाम में न्यूज आएगी सेंसेक्स राइजेस बाय 200 पॉइंट्स, 500 पॉइंट्स। लेकिन दोनों कंपनीज में डायरेक्ट डील नहीं हो रही। ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मुकेश अंबानी को फोन नहीं मार रहे, फोन लगा के नहीं बोल रहे कि हमें शेयर्स दो। समझ में आया? तो व्हाट इज द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड हाउ इज इट इंक्लूडेड इन द एफडीआई? एफडीआई इनफ्लो में वैसे तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एफडीआई इनफ्लो थियोरी के हिसाब से, जो मैंने आपको बताया अमेजन वाला एग्जांपल, एफडीआई इनफ्लो इन थियोरी इज सपोज्ड टू ब्रिंग इन एडिशनल कैपिटल टू इंक्रीज पोटेंशियल आउटपुट। लेकिन यहां पे जब ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आता है ना, स्टॉक एक्सचेंज से पैसे या कुछ खरीदता है, तो आउटपुट थोड़ी बढ़ती है। मुकेश अंबानी की कंपनी का ऐसे थोड़ी है कि शेयर्स बिकेंगे तो मुकेश अंबानी दिन दुगनी 4 रात दुगने काम करने लग जाएंगे। नहीं, वर्कर्स जो है काम करने लग जाएंगे, क्योंकि नया पैसा तो नहीं आया ना। एफआईआई में तो वही पैसा है, बस पहले इंडियन शेयर होल्डर था, अब वो शेयर होल्डर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गया, एलआईसी ऑफ यूएसए या म्यूचुअल फंड ऑफ ब्राजील या साउथ अफ्रीका। इन्होंने हमारे शेयर्स खरीद लिए, इनको ये लगता है कि मुनाफा होगा, स्पेक्यूलेशन करेंगे। दैट इज व्हाई दे हैव परचेज्ड द शेयर्स ऑफ आवर कंपनीज, इंडियन कंपनीज। इंडियन इन्वेस्टर इनको बेच के मजे में है, खुश होता है कि देखो सेंसेक्स बढ़ गया। चल क्या रहा है यहां पे? स्पेक्यूलेशन चल रही है, मुनाफाखोरी। डन। वापिस आते हैं। FDI inflows in theory are supposed to bring in additional capital to increase potential output, taking managerial control. Amazon का managerial control अपने हाथ में है। Flipkart जब Walmart ने खरीद ली तो उसके हाथ में था। हज को जब वोडाफोन ने खरीद लिया तो मैनेजरियल कंट्रोल लिया और साथ में कुछ पैसे और भी लगा दिए वोडाफोन ने।
लगाए ना, बढ़िया टेलीफोनिक सर्विसेज आने लगी जब वोडाफोन आया था हज के बाद। तो इन कॉन्ट्रास्ट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जैसा कि नेम आपको बताता है, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है डोमेस्टिक इक्विटी और डेट शेयर होल्डर्स में, बॉन्ड्स में, मार्केट्स में, टू रियलाइज बेटर फाइनेंशियल रिटर्न्स। बट द कॉन्सेप्चुअल डिस्टिंक्शंस, तो फिर यहां पे 10% क्यों आया भाई, ये तो बताओ। बट द कॉन्सेप्चुअल डिस्टिंक्शंस हैव ब्लर्ड इन ऑफिशियल रिपोर्टिंग। ऑफिशियल रिपोर्टिंग में एफडीआई को एफआईआई कह दिया गया, जैसा कि इस सरकार के कार्यकाल में हर चीज की फजिंग ऑफ डेटा हो रही है। ये बता दिया एफडीआई 10% बढ़ी है, शोइंग एन आउटसाइज्ड रोल ऑफ एफडीआई एंड इट्स ग्रोथ इन इंडिया। ठीक है, इफ द डेल्यूज मतलब एकदम से जो बरसात हुई एफआईआई इनफ्लोज की, डिड लिटिल टू ऑगमेंट द इकोनॉमीज पोटेंशियल आउटपुट, व्हाट देन इट डिड टू। अब एफआईआई के आने से कंपनी, हमारी कंट्री की पोटेंशियल आउटपुट, उत्पादन शक्ति, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ तो नहीं गई, तो फिर हुआ क्या, इसने बहुत सारा फ्रॉथ होता है, बहुत सारा झाग पैदा कर दिया। मतलब शेयर्स के प्राइसेस इतने ज्यादा इन्फ्लेटेड हो रखे हैं। ये जो तुम सेंसेक्स देख रहे हो ना 50,000 के मार्क से ऊपर चल रहा है, ये इसलिए चल रहा है, जो ये 150 वाला शेयर मैंने तुम्हें बोला कि पहले हम लोगों ने, इंडियन इन्वेस्टर्स ने अपनी गाड़ी कमाई से, हार्ड अर्न्ड मनी से हमने कंपैरिजन किया कि रिलायंस के जियो की इन्वेस्टमेंट कंपनी की इतनी हो रखी है, कंपनी का हर साल प्रॉफिट इतना आता है, तो कायदे के हिसाब से इसके शेयर के प्राइस की औकात, शेयर की औकात 150 रुपए से ऊपर नहीं बनती है ना। लेकिन जब स्पेकुलेशन होती है ना, स्पेकुलेशन मतलब मुनाफाखोरी, आज इसने ये शेयर 150 रुपीज से 155 का खरीदा, ए से बी ने वो शेयर 170 रुपीज का खरीद लिया, इस उम्मीद में कि अगले दिन डी आएगा उसे 180 रुपीज का खरीदेगा, अगले दिन ई आएगा उसे 200 का खरीदेगा। इस वजह से शेयर्स के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए, इस वजह से झाग पैदा हो गई। ठीक है, साबुन नहीं है यहाँ पे, प्रोडक्शन नहीं है, इट्स जस्ट दी froth to the stock prices. When the GDP has contracted by 7.3% in 2021 on the account of pandemic, countries, हमारी कंट्री में, इंडिया में कंपनीज की आउटपुट नीचे जा रही है। स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया ऑटोमोबाइल सेल्स गिर रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग गिर रही है, पीएमआई पूरा साल गिर रहा था, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, आईआईपी लास्ट क्वार्टर में जनवरी फरवरी मार्च में बढ़ा, उसके बाद गिर रहा था। लेकिन शेयर्स के प्राइसेस क्यों बढ़ते चले गए? रीजन ये है, राइटर ये कह रहे हैं कि एफआईआई ने यदि प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया, हमारी कंट्री का जीडीपी नहीं बढ़ा, तो फिर बढ़ा क्या? एक्चुअल में शेयर्स के प्राइसेस बढ़ गए, बस। समझ में आया? तो ये मतलब है यहाँ पे बीएसईज प्राइस अर्निंग मल्टीपल, ये एक मैट्रिक लगाया जाता है, प्राइस कितना है और शेयर की अर्निंग कितनी है। यानी कि अगर आपने कोई शेयर 100 रुपए का खरीदा है, वो आपको 10 रुपए देता है अर्निंग में। अर्निंग मतलब कंपनी जो काम कर रही है उस हिसाब से कंपनी का जो प्रॉफिट आएगा उसमें आपको हिस्सेदारी 10 रुपए मिल जाएगी। लेकिन अगर वही शेयर 400 रुपए का हो जाता है और आपको अर्निंग फिर भी 10 रुपए मिलती है, तो प्राइस अर्निंग रेशो इज अमंग दी हाईएस्ट। प्राइस ज्यादा है और अर्निंग कम, 40% से ज्यादा। समझ में आया? इज अमंग दी वर्ल्ड्स हाईएस्ट। क्यों? क्योंकि मुनाफाखोरी हुई है। 150 वाला शेयर 800 रुपए में खरीदा जा रहा है, इससे उनको मजा आ रहा है जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। लेकिन जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन शेयर्स को बेच के जाएंगे कम दाम में या ज़्यादा दाम में, तो नुकसान होगा। अभी तो रैली चल रही है, वो लोग खरीदते जा रहे हैं। Thus, the increase in the total FDI inflow during the pandemic year is entirely explained by booming short-term FIIs in the capital market. Booming short-term foreign institutional investments in the capital market and not adding to the fixed investment. Fixed investment क्या होता है कि fixed investment ये करता है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वो नई क्रेन्स खरीदते हैं, नई रिफाइनरी लगाते हैं, जैसे कैन इंडिया आई, रिलायंस के साथ CAIRN, उन्होंने कृष्णा गोदावरी में ड्रिलिंग करी, वो सही मायने में आउटपुट निकल रही है, प्रोडक्शन निकल रही है। अमेजन आया, उसने हमारा कॉमर्स मतलब परचेजिंग करने का तरीका बदल डाला और इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी, डिलीवरी बॉयज, अमेजन के मैनेजर्स, परचेजिंग मैनेजर्स, वो सही मायने में ग्रोथ है। ये क्या कर रहे हैं? ये बस पैसा एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। एक हाथ में पैसा था शेयर इंडियन शेयर होल्डर के, उनको दूसरे में ले दिया, राइट? Whose loss is this froth pricing?
ये किसका लॉस होगा फ्रोथ प्राइसिंग की वजह से? म्यूजिकल चेयर्स देखते हो ना जब बर्थडे में जाते हो, जिस पे वो कुर्सी रुक जाती है, बस अभी क्या चल रहा है, ट्रेपीजियम की तरह है ये दोनों में। इंडियन इन्वेस्टर लेता है, फॉरेनर को बेच देता है, ठीक है। फॉरेनर 150-160 में लेता है, इंडियन इन्वेस्टर को लगता है या किसी दूसरे कंट्री से यूके के फॉरेन इन्वेस्टर को लगता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को, कि ये 150 में 160, 160 में 170, ठीक है, अब 170 में 180, ये ऐसे गेम चल रही है। अब ये किस पे रुकेगा, ये डिपेंड करता है कि जब म्यूजिक रुकेगा, जब ये रैली जो चल रही है, जब स्पेकुलेशन होती है तो तुम क्या करते हो, चलो यार चलते हैं, एक लाल बत्ती क्रॉस करते हैं, फिर दूसरी करते हैं, तीसरी पे पुलिस वाला पकड़ लेता है, राइट। वैसे ही अगर शेयर के प्राइसेस जब क्रैश होने शुरू होंगे, तब शेयर असल में किसके पास होगा, ये उस पर डिपेंड करता है। अगर इंडियन इन्वेस्टर रुक जाते हैं कि नहीं अब बबल डेवलप हो गया है, गुब्बारा है, कभी भी फट सकता है, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फंस जाएंगे। क्लियर? उनको लॉस बेयर करना पड़ेगा, उनको सस्ते में शेयर्स बेच के जाने पड़ेंगे, राइट। नहीं वो तब वो उस पर फन एकेडमी पे कोई असर नहीं आएगा, वो अलग स्टोरी है। नाउ द कॉमर्स मिनिस्ट्री प्रेस रिलीज क्लेम्स एन अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन द ग्रॉस फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज, ठीक है। The rapid influx is evidence of the success of economic policies during the pandemic. गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज का सक्सेस है, हालांकि जब ये एफडीआई है ही नहीं तो सक्सेस काय का हुआ, ठीक है। रीजन ये है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ये पता लग गया कि इंडिया में सस्ते शेयर्स खरीदे जा सकते हैं। लेकिन क्यों खरीदने चाहिए? इसलिए खरीदने चाहिए कि इंडिया की जिस कंपनी का शेयर 150 रुपए का होना चाहिए, उसका प्राइस आज 125 है, तो उन्होंने लगाना शुरू कर दिया। 125 150 वाली चीज जब 125 में मिलेगी तो वो आएंगे इंडिया में, उन्होंने इंडिया के शेयर्स खरीदने शुरू कर दिए, इसीलिए एफआईआई ज्यादा आने लग गई, ठीक है। अनप्रेसिडेंटेड शॉर्ट टर्म फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स आर एंटायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज, and within the portfolio investment FIIs shot up to $38 billion from $500 million previous year. Flood of FIIs has boosted in share prices and financial returns. Okay, these foreign institutional inflows did little to augment fixed investment and output growth. Done. इकोनॉमिक टूल किट रिवील्ड, इस पे हम बाद में आएंगे। ये आरबीआई की तारीफ करता है ये आर्टिकल, इसको चलो 2 मिनट लगा के खत्म करते हैं, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। मोस्ट लाइकली देखो, रीडिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज एनुअल रिपोर्ट फॉर 2021 द इकोनॉमिस्ट इज ड्रिवन, कोई भी इकोनॉमिस्ट जो होगा ही और शी इज ड्रिवन टू रीथिंक व्हाई इंडिया टुडे नीड्स इट्स सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई मोर देन एवर बिफोर। आरबीआई की आज सबसे ज्यादा जरूरत क्यों है पहले के मुकाबले? इसलिए मोस्ट लाइकली इट विल बी द वन सजेस्टिंग दैट perhaps RBI is to be desired more for RBI's role as a source of unbiased and reliable information. अभी पिछले आर्टिकल में हमने देखा कि RBI ने FDI का डेटा गवर्नमेंट से थोड़ा ज्यादा सच्चा डेटा बताया, ठीक है, मतलब ट्रूथफुल या रियलिस्टिक डेटा दिया। नाउ इंफॉर्मेशन ऑन द इकोनॉमी दैन इट्स पोटेंसी इन ड्राइविंग इट, ठीक है। इकोनॉमी को चलाने में पोटेंशियल आरबीआई का भले ही कम हो, लेकिन आरबीआई की जरूरत आज सबसे ज्यादा इसीलिए महसूस होती है अनबायस्ड डेटा देने के लिए। द फॉर्मर इज नॉट अ ट्रिवियल प्रेजेंस। ये बात कि आरबीआई अनबायस्ड डेटा प्रोवाइड करता है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इट्स नॉट ट्रिवियल फैक्ट, okay, especially at a time when citizens are skeptical of independence of government agencies. हर गवर्नमेंट एजेंसी को, सीवीसी को, सीआईसी को, सब चीज़ों को तो कुचला जा रहा है। ऐसे टाइम पे यदि आरबीआई के गवर्नर, जिनका नाम ही दास है, शक्तिकांता दास, अगर वो दास होने पे कम और शक्ति पे ज़्यादा काम करें और अनबायस्ड डेटा अपनी एनुअल रिपोर्ट में रिलीज करें, तो ये शक्तिमान वाली बात है। मतलब समझ में आया? तो इसीलिए कोई भी इकोनॉमिस्ट ये कहेगा कि आज आरबीआई की जरूरत पहले के कुछ सालों से कई ज्यादा महसूस होती है। एनुअल रिपोर्ट ऑफ आरबीआई इज अ स्प्लेंडेड डॉक्यूमेंट। द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन इट enables us to understand which economic policy can move the economy, even as it shows that RBI's own capacity in this task may currently be limited. क्यों limited? RBI ने रेट कट कर सकता है RBI, ठीक है, RBI रेट कट कर देगा, इससे ज्यादा RBI क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता। रेट कट करने के बाद जो डिमांड साइड है, आप और मैं
कंज्यूमर एट लार्ज, सो मैनी कंज्यूमर्स इन द इकोनॉमी, क्या हम एसी खरीदेंगे, क्या हम जेवीज का कोर्स खरीदेंगे, ये डिपेंड करता है। क्या हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदेंगे या बनाएंगे, ये डिपेंड करता है जीएसटी रेट पे। जीएसटी रेट आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट नहीं है, जीएसटी रेट फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। फिस्कल पॉलिसी कौन ऑपरेट करता है, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। इसीलिए ये लाइन में लिखा है कि the information provided in it enables us to understand which economic policy can move the economy, even as the RBI's report shows that RBI's own capacity in this task of moving the economy may currently be limited. Clear? Clear? तुम लोग हाजिरी लगाओ जो देख रहे हो फटाफट से। A quick attendance guys, quickly. Need a quick attendance quickly guys. Clear? Now, in the annual report we find data on the movement of three variables over the past year, namely interest rates. आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट में आरबीआई जो कर सकता था उसने किया, इंटरेस्ट रेट को कम करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना और क्रेडिट फ्लो को बढ़ाना। इन तीनों कामों में आरबीआई काफी कारगर साबित हुआ है। इन सम केसेस द डेटा आर एग्जैक्टली फॉर 1 ईयर। ठीक है, it is one of the very active use of monetary policy to stave off the negative impact of the lockdown. आरबीआई इमीडिएटली मार्च 27 को ही आरबीआई के गवर्नर 2020 में मार्च 27 को आरबीआई के गवर्नर लाइव आ गए थे। एक दिन पहले निर्मला सीतारमन आई थी, उसके अगले दिन आरबीआई गवर्नर आ गए। आरबीआई इमीडिएटली लोवर्ड द इंटरेस्ट रेट इन इट्स कमांड, द रेपो रेट in fact more than once, and has held it at a lower level. Repo rate is the rate at which RBI lends money to the banks. If RBI lowers the rate, if RBI lowers the repo rate, then banks are going to get money at a lower rate of interest. If banks are going to get money at a lower rate of interest, they are going to lend it to customers like you, me and Tata and Ambani at a lower rate of interest. If Tatas are going to get money at a lower rate of interest, they are going to start operating some business, start running their factories. They will borrow working capital loans. They will start producing. If they would start producing, it will generate employment, because they themselves are not going to produce biscuits and all. They will hire someone. Once they will hire someone, that worker will get wages or salaries. If he or she gets the wages or salaries, he or she is going to buy his or her children Parle-G biscuits. Parle-G will start producing. This is how the virtuous cycle is kicked in. It starts. Then RBI attempted to influence the long-term rate of interest through targeted long-term repo operations. 5 साल के लिए बोला कि मैं तुम्हें इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे दे रहा हूं, यानी कि लॉन्ग टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी कंट्रोल करने की कोशिश करी in order to encourage investment. It enhanced liquidity by lowering the cash reserve ratio. लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस में ये होता है कि रेपो सिक्योरिटीज की जो ऑक्शनिंग होती है ना, मैं आरबीआई हूं, तुम बैंक हो, मैंने तुम्हें कहा कि ये लो मैं तुम्हें 5 साल के लिए पैसा देता हूं, तुम मुझे अपनी सिक्योरिटी दे दो और 5 साल के लिए इस पैसे पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा 6%। तुम बैंक हो, तुम बहुत खुश हुए। अब तुम अपने कस्टमर को ये बोलोगे ये लो, ये लोन ले लो, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% रहेगा, क्योंकि आरबीआई ने तुम्हें 6% में दिया, एसबीआई हो तुमने 8% में कस्टमर को दे दिया। कस्टमर खुश है कि अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% नहीं होगा 5 साल के लिए, 7 साल के लिए। कस्टमर यानी कि टाटा अब जो बिजनेस का अपना प्लांट लगाने जा रहा है टाटा नैनो का या टाटा कोई और कार का, उसमें टाटा को ये पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड रहेगा, तो टाटा सर्टेन है कि मैं इतनी कारें बेच लूंगा तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट और अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। ठीक है, तो आरबीआई ने ये सारे काम किए हैं इन साल में, एक साल में, इन सिंक विद द क्रेडिट गारंटी अवेलेबल अंडर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा 50,000 करोड़ रुपीस की क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई जाएगी। द ऑन टैप मतलब जब चाहो, बैंक्स को ये बोल दिया गया आपको जब जरूरत पड़े ऑन टैप आप, जैसे हम ये बटन दबाते हैं पानी आ जाता है ना इलेक्ट्रिक मशीन में, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक मशीन की तरह पैसा निकलने लग जाएगा जब आपको चाहिए हो, टू कवर 26
stressed sectors, MSME, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, रियल एस्टेट सेक्टर, इनको 50,000 करोड़ रुपीस के लोन्स देने के लिए ये कहा SBI को कि इनके, SBI को ही नहीं सभी बैंक्स को, कि इनके लोन्स को जब रीफिनेंस करना हो, इनको जब पैसा चाहिए हो आप दे देना और हमसे ले लेना। ये सारे काम किए, ठीक है। These thoughtful monetary policy actions were not successful in spurring the growth of credit, in increasing the growth of credit. Credit growth होगी तो ही तो इकोनॉमी बढ़ेगी। मैं अगर व्यापारी के वे से देखूं, अगर मैं लोन लूंगा बैंक से तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं एक ऑफिस की जगह 2 ऑफिस खोलूंगा, 2 की जगह 3 खोलूंगा, 3 ऑफिसेज में एम्प्लॉयमेंट, 3 ऑफिसेज में फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन, तो ऐसे होती है इकोनॉमी की ग्रोथ। लेकिन आरबीआई के ये सारे काम करने के बावजूद भी काम नहीं हो पाया। क्यों? इंडियाज मॉनेटरी अथॉरिटी दैट इज आरबीआई cannot be faulted for the speed with which it acted, which was markedly different from what was seen on the fiscal front, which was markedly different from what was seen on the fiscal front, ठीक है। Now in the following year credit growth slowed further, remaining barely positive for industry, a sector highly dependent on the bank credit. Clear? So to get the picture, non-food credit to this sector grew by a mere 0.4%. तो ये सारा कुछ यहाँ पे हुआ है कि गवर्नमेंट अपना रोल सही से नहीं निभा पाई। अब it is not as if the reduction in the central bank's interest rate actions did not have an impact on the commercial. आरबीआई ने जो रेट कट करे उसका फायदा देखने को मिला कमर्शियल बैंक्स वगैरह पे, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुए सभी सेक्टर्स के लिए। दस दी सो कॉल्ड ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, आरबीआई ने रेट कट किया, रेट कट बैंकों में हुआ, फिर बैंकों ने आगे रेट कट किया, यानी कि ये ट्रांसमिशन बिल्कुल ठीक है। आरबीआई, बैंक्स एंड बैंक्स ऑल्सो पास्ड ऑन द रेट कट टू देयर कस्टमर्स। ट्रांसमिशन मैकेनिज्म डिड वर्क, that it did not spur the credit growth, though is to be seen in the light of experience gained from the episodes when aggregate demand collapsed. The lockdown did set off such a movement. Demand गिरने लग गई, लोगों को इनसिक्योरिटी कि क्या अब लॉकडाउन खुलेगा, क्या हमारी नौकरी सुरक्षित है। तो जब लोग सुरक्षित नहीं होते तो लोग क्या करते हैं? When people are not secure about their economic income, financial income, they will have more preference for saving. That means the poor employee there is not going to buy a new car. He is not going to buy more chocolates for his kids. He is going to cut down on consumption so as to save for any future uncertainty. We see replicated in India the global history of Great Depression of 1930s and the Great Recession of 2000s, when monetary policy was infected as animal spirits. At least among the investors outside the stock market were bearish. Bearish होते हैं भालू छुक जाता है ना, भालू को लगता है मतलब सब निराश है। बुलिश मार्केट क्या होती है? जैसे बुल अपने सिंग को ऊपर उठाता है ना, हॉर्न्स को वो क्या करता है? ऊपर रेज करता है, क्योंकि उसको पता है कि मार्केट उठेगा, वो ये सोचता है कि मार्केट उठेगा। राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया में ग्रेट डिप्रेशन 1930s और 2000 जैसी हालत देखने को मिली, जब मॉनेटरी पॉलिसी ने रेट कट होने के बावजूद भी डिप्रेशन देखा, जिसमें कीन्स ने, जॉन मेनार्ड कीन्स ने ये कहा था कि ऐसे टाइम पे फिस्कल पॉलिसी, सरकार को सामने आना होगा, जीएसटी रेट कट करना होगा, पेट्रोल का जो डीजल के ऊपर जो एक्साइज लग रही है वो कट करनी होगी ताकि लोग और ज़्यादा खरीदें, है ना। अगर किसी को एसी 20,000 रुपये का कोई एयर कंडीशनर परचेज करना है और ऑलरेडी मार्केट में मातम जैसी स्थिति है, ऑलरेडी पेसिमिज्म है, तो सरकार बोल रही है नहीं नहीं, मोदी जी ने डिसीजन ले लिया, जिद्दी आदमी है, हम रेट कट नहीं करेंगे। उससे क्या होगा? गाड़ी के टायर और पंचर हो जाएंगे, है ना, क्योंकि तुम्हें लोगों को कुछ इंसेंटिव देना होगा। अगर पेसिमिज्म है तो जेवी केयर जैसा डिस्काउंट दोगे तभी तो कुछ होगा, नहीं तो डिमांड नहीं बढ़ेगी। मतलब समझ में आया? आई एम गिविंग अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सो एज टू एनेबल यू टू अंडरस्टैंड इन एन इंटरेस्टिंग मैनर। अब सरकार क्या कर रही है? नहीं जी हम जिद पे अड़े हैं, जिद पे अड़ के तो फिर दिक्कत ही है यहाँ पे, ठीक है। हाउ एवर इन द केस ऑफ इन्फ्लेशन
Again, meticulously documented by RBI, India's experience stands out. India का experience और countries से अलग है. Here, after the lockdown and contrary to the global pattern, the inflation rate has risen well beyond the target, leaving in doubt the ability of monetary policy to control it. Clear? अब ये हो गया. आगे चलते हैं फटाफट से. ये हम बाद में डील करेंगे. इसमें भी काफ़ी अच्छा है. दोनों को मैंने क्लब किया है. अच्छा, ये पॉपुलेशन वाला है. रुक जाओ. चाइना ने एक डिसीजन लिया है टू रिलैक्स इट्स 2 चाइल्ड नॉर्म, क्योंकि चाइना में एजिंग के संकेत दिख रहे हैं. ठीक है, चाइनीज इकोनॉमी, चाइनीज सोसाइटी, डेमोग्राफी एज हो रही है, उनकी ग्रेइंग ऑफ पॉपुलेशन देखने को मिल रही है. चाइना ने क्या कहा था, 1 चाइल्ड नॉर्म. अगर कोई एक बच्चे से ज़्यादा बच्चे पैदा करता है तो उनको जेल हो जाती थी. ठीक है, अब चाइना इनको रिलैक्स कर रहा है बिकॉज इट कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव. तो इंडिया के लिए ये वार्निंग है कि हम जो यहाँ पे जो राजीव गांधी के टाइम में हमने नसबंदी और ये सब प्रोग्राम चलाए वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकते हैं इंडिया में. ठीक है, दे कुड बी काउंटर प्रोडक्टेड. ओके, तो these things are there. Now India on the other hand has been toying with the idea of population control measures through a 2 child norm, which found a mention in Prime Minister's Independence Day speech 2 years ago. India can learn from China's failed experience of enforcing coercive population. Coercive होता है रोकना, रेगुलेट करना कि तुम 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करोगे. ठीक है, population control measures, however stringent, however strict, have landed China in a population crisis, and in India it will be worse. Warning for India, India will end up with the same issue of an aging population and a very few people to take care of them in another 30 years. सिक्किम और लक्षद्वीप में ये ऑलरेडी देखने को मिल रहा है. इंडिया इज ऑलरेडी फेसिंग द सेम चैलेंज ऑफ एन एजिंग पॉपुलेशन, श्रिंकिंग वर्कफोर्स एंड एन इंक्रीज इन सेक्स सिलेक्टिव प्रैक्टिसेस गिवन दैट दे हैव लो फर्टिलिटी रेट्स. अभी 15 मिनट कहीं मत जाना. ये इस टॉपिक का होलिस्टिक एनालिसिस अलॉन्ग विद मेंस क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सी इन दिस पर्टिकुलर slot of 10-15 minutes. What we need in our country is population stabilization instead of population control. India has long been concerned about curbing population explosion, but needs to focus its attention on population stabilization instead. क्यों? India has done very well with its family planning measures and now we are at a replacement level. Replacement level मतलब if a woman in India on an average gives birth to 2.1 babies, 2.1 children throughout her productive life cycle. एक माँ की जो बच्चा पैदा करने की क्षमता के साल होते हैं, प्रोडक्टिव ईयर्स, ठीक है, मेनोपॉज से पहले के साल, अगर वो सिर्फ अगर 10 माएँ 21 बच्चों को जन्म देंगी तो पॉपुलेशन रिप्लेस होती जाती है, यानी कि जितने लोग मरेंगे उतने लोग नए पैदा हो जाएंगे. ये पॉपुलेशन स्टेबिलिटी होती है, ना पॉपुलेशन बढ़ेगी ना कम होगी. लेकिन अगर हम इस तरह के नियम लगाएंगे कि जबरन ट्यूबेक्टॉमी करो, वैसेक्टॉमी करो, तुम्हें 900 रुपये मिलेंगे, तुम्हें मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में पहले बच्चे के लिए 6 महीने की छुट्टी मिलेगी, अगले बच्चे के लिए थोड़ी और कम हो जाएगी, उससे अगले बच्चे के लिए और कम, उससे अगले बच्चे के लिए 0 हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, चाइना जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है. राइट, टोटल फर्टिलिटी रेट हमारी कंट्री में ऑलरेडी 2.1 के अराउंड पहुंच चुका है, विच इज डिजायरेबल. इंडिया डोंट नीड एनी coercive measures, but the country need to sustain population stabilization because in some states including Sikkim, Andhra Pradesh, Delhi, Kerala and Karnataka total fertility rate is way below replacement level. तो कुछ डेटा यहाँ पे देखते हैं. आप यहाँ पे देखोगे more elderly fewer kids वर्ल्ड में 2050 वर्ल्ड का ट्रेंड है ये. राइट, इंडिया के ट्रेंड आप देखो, वर्ल्ड में 13.1, इंडिया में 14.4 था. दिस इज 25 to 64 ईयर्स की जो पॉपुलेशन है वो ब्लू कलर में है. राइट, अब अगर यहाँ पे देखो तो इंडिया में 14.4% थी. इंडियाज अंडर 65 पॉपुलेशन स्टिल बिलो अंडर 5 काउंट, बट नॉट फॉर लॉन्ग. आने वाले टाइम में ये डेटा ये बताता है कि ये देखो यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन जो है बराबर होने लग जाएगी. यहाँ पे हमारा नंबर कम हो रहा है. 8% ऑफ आवर पॉपुलेशन will be
बिलो अंडर 5 काउंट होने लग जाएगी, ठीक है। तो ग्राफ्स कंपेयर मेल्स पर, ये तो चलो सेक्स रेशो का पार्ट हो गया, इस डेटा को क्लियर है ये। 1/7 ऑफ इंडिया ओवर 65 ईयर्स, जस्ट 5% अंडर द एज 5। अब जो ये 5% अंडर द एज 5 हैं, ये अगले 30 सालों में कहाँ होंगे? 35 साल के हो जाएंगे, फिर उसके अगले 40 सालों में ये और बढ़ने लग जाएंगे। तो हमारी पॉपुलेशन की एजिंग एक रियलिटी होने जा रही है, राइट। वर्ल्ड में देखें तो 1/6 ऑफ द वर्ल्ड ओवर 65 ईयर्स है। वर्ल्ड की 16.66% पॉपुलेशन 65 ईयर से ज़्यादा है। जस्ट 7% ऑफ द पॉपुलेशन अंडर एज 5। हमारे यहाँ पे जस्ट 5% ऑफ द पॉपुलेशन अंडर एज 5 है, ठीक है। तो ये खतरनाक चीज़ है कि हमारे यहाँ बच्चे कम पैदा किए जा रहे हैं, यानी कि फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो, रिलीजन वाइज भी ये डेटा मैंने इनकॉर्पोरेट किया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 का, ये तुम खुद पढ़ोगे, इस पर मैं ज़्यादा स्टडी नहीं कराऊंगा। फर्टिलिटी लेवल्स अक्रॉस मेजर इंडियन स्टेट्स, टोटल फर्टिलिटी रेट वेस्ट बंगाल में 1.6 है, दिल्ली में 1.7 है। तो ये फर्टिलिटी रेट ऑलरेडी रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट यानी कि 2.1 से कम हो चुका है इन सभी स्टेट्स में। जो बची हैं स्टेट्स जिनमें ज़्यादा है वो ये बीमारू स्टेट्स आ गई, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड दिस ये बीमारू 5 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कंट्री का जो पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट से ज़्यादा रेट है हमारी कंट्री में 2.1 से ज़्यादा, लेकिन बाकी की स्टेट्स में जो ये रेट कम हो रहा है, हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करने की अब ज़रूरत नहीं है, हमें पॉपुलेशन स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान देना होगा, वरना हम भी एक जर्मनी और जापान जैसा बूढ़ा देश बन के रह जाएंगे, राइट। Total fertility rates of 10 Indian states are below replacement levels. Population in these states is expected to decline in the coming years. In almost all the low fertility states, female literacy rates are above national average. In almost all the low fertility rates, ठीक है, female literacy rates are above national average. तो दिस डेटा इज ऑफ हाई यूज रेलेवेंस टू यू, ठीक है। वेराज इन ऑलमोस्ट ऑल दी हाई फर्टिलिटी रेट्स, फीमेल लिटरेसी रेट्स आर बिलो द नेशनल एवरेज ऑफ 65%. दैट मीन्स आउट ऑफ एवरी 100 पीपल 65% आर लिटरेट इन इंडिया। तो जहाँ पे लो फर्टिलिटी रेट्स जिन स्टेट्स में पाए जा रहे हैं, वहाँ का डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन अच्छा है, राइट। सो दिस डेटा वी हैव कवर्ड. नाउ coming to this part, this is the analysis that you should see here. Total fertility rate by region, ये blue line इंडिया को डिपिक्ट करती है। इन कंट्रीज में टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से भी अबव जा रहा है, देख रहे हो ना। हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट 2020 के बाद ये जो लाइन है आप देख रहे हो, ये 2 से भी नीचे जा रही है, तो 1% आ जाएगा। यानी कि हमारे यहाँ रिप्लेसमेंट लेवल की पॉपुलेशन को भी, पुराने लोगों को रिप्लेस करने के लिए भी नए लोगों को जगह नहीं, नए लोगों को जन्म नहीं दिया जा रहा। ध्यान से देख लो इस डेटा को, समझ में आया। 2.1 इज द रिप्लेसमेंट लेवल, ये वर्ल्ड का मेट्रिक है जो रिप्लेसमेंट लेवल कहा जाता है। इन ऑर्डर टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन, अ वुमेन इन हर प्रोडक्टिव लाइफ शुड गिव बर्थ टू 2.1। इसके पीछे रीजंस क्या है? रीजन ये है, एक तो फीमेल चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रहा है, लड़के थोड़ी जन्म देंगे, लड़कियां ही जन्म देंगी। तो इसीलिए तुम यहां पे ध्यान से देखो, ये वो स्टेट्स हैं पंजाब, हरियाणा, क्यों रिप्लेसमेंट लेवल से कम है पॉपुलेशन? हरियाणा ये रहा, ठीक है। हरियाणा में चलो फिर भी ठीक है, लेकिन हरियाणा में क्या है, पंजाब से ज़्यादा बच्चों को जन्म दिया जाता है, लेकिन चाइल्ड सेक्स रेशियो गड़बड़ होने की वजह से दिक्कत ये हो रही है, फीमेल्स कम पैदा हो रही हैं, फीमेल ही जन्म देती हैं बच्चों को, तो फीमेल ही नहीं हो रही तो रिप्लेसमेंट लेवल का क्या करोगे, राइट। ओके, सो दिस इज देयर। नाउ कमिंग टू द अदर एस्पेक्ट्स, अब आते हैं रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पे। थियोरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, पहले ये तुमने एनसीईआरटी में पढ़ी होगी, अच्छी बात है। बर्थ रेट और डेथ रेट ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। लोग पुराने जमाने में 7-8 बच्चों को पैदा करते थे, क्यों? बचेंगे 2 ही, क्योंकि डेथ रेट बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन एक स्टेबल रेट से बढ़ती है। फिर विद द एडवेंट ऑफ मेडिसिन्स, एंटीबायोटिक्स, काला अजहर जैसी बीमारियां खत्म,
पॉपुलेशन बढ़ना, टोटल पॉपुलेशन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि बर्थ रेट उतना ही रहता है, लोगों को अनसर्टेनिटी तो उतनी रहती है कि हमारा बच्चा मर जाएगा, राइट, लेकिन डेथ रेट कम आने लगता है। फिर आगे चल के लोगों को स्टेज 3 में ये भरोसा हो जाता है कि हाँ हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारे बच्चे को बचा लेंगी। तो फिर क्या होता है, डेथ रेट गिर गया, बर्थ रेट भी लोग कम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे देखोगे स्टेज 3 में बर्थ रेट कम होने लगता है, ठीक है, फिर आगे स्टेबल पॉपुलेशन हो जाती है। क्लियर? सो दिस इज देयर। नाउ अगला एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन वेदर ग्रोइंग पॉपुलेशन इज द कॉज ऑफ पॉवर्टी और पॉवर्टी इज द मेन कॉज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन इंडिया। हेड वर्सेस टेल काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम है ना, कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन है या सॉल्यूशन प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम है, ये वाला डिलेमा है यहाँ पे। 2015 का क्वेश्चन। द लाइफ साइकिल ऑफ अ जॉइंट फैमिली डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक फैक्टर्स रादर देन सोशल वैल्यूज। जॉइंट फैमिली का लाइफ साइकिल किस पे डिपेंड करता है? तुम लोग क्या कहोगे? मम्मी मेरी जॉब लग गई मैं बैंगलोर चला, है ना, या पापा मेरी जॉब लग गई मैं मुंबई चला, यही होता है ना। तो लाइफ साइकिल जॉइंट फैमिली का सोशल वैल्यूज पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करता, इकोनॉमिक फैक्टर्स पे ज़्यादा डिपेंड करने लगा है, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिलीज क्यों हो रही हैं, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर मेंस। Do you think that India should revisit its demographic strategy from that of population control to population stabilization? Elucidate. The keyword has to be focused upon. Those of you who are in any of the batches, खासकर इस बैच में भी मैं इसका keywords का एक लेक्चर लूंगा। Assess का मतलब क्या होता है, critically analyze का मतलब क्या होता है, इनके ऊपर एक लेक्चर होगा। Elucidate in the light of graying of population in countries like Germany and Japan and concerns related to aging in China. What are the ways to bring about? अब हमने कह तो दिया population stabilization करो। population stabilization कैसे की जाएगी? 2 बच्चे जिनके हैं उनको पैसे दिए जाएं, है ना, कुछ मॉनेटरी इंसेंटिव दिया जाए, उनको जॉब में ज़्यादा चांसेस दिए जाएं, तो ये करने की ज़रूरत है। What do you understand by demographic dividend? By is missing here. Why is it said that demographic dividend in India might become demographic disaster? ठीक है, अभी हमारे ये 30 साल हनीमून का पीरियड चल रहा है इंडियन इकोनॉमी के लिए, राइट। सो दिस इज देयर। फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स, स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ फर्टिलिटी रेट। टॉप 3 स्टेट्स जिनका फर्टिलिटी रेट बहुत ही कम है, तो हमने ये देखा, लक्षद्वीप वगैरह भी इसी में आ जाता है, सिक्किम भी आ जाता है। बॉटम 3 बिहार में 3.4, यूपी 3.1, मध्य प्रदेश। ये सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग ये डेटा है। क्लियर? वॉइस किसको नहीं आ रही? पीडीएफ इज डाउन, यू नो, जो लोग एप्लीकेशन पे देख रहे हो, मैं 2-3 तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अच्छा, व्हाट हैव वी डन सो फार? पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 ये पढ़ोगे तुम, ठीक है। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड बनाया, ये मैं किसी और दिन कवर कराऊंगा, बस इस कोर्स में तुम्हारा रेगुलर रहना जरूरी है। नेशनल यूथ पॉलिसी, ये सरकार बना ही रही है यूथ पॉलिसी, है ना। अगर बीजेपी की युवा दल पॉलिसी बनानी होती तो बन जाती, क्योंकि ये नेशनल यूथ पॉलिसी है तो अभी टाइम लग रहा है। मैल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन पे पहले ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। If left unchecked, a population will outgrow its resources, leading to a host of problems. ये NCERT से मैंने ये पैराग्राफ लिया है। The theory has outlived its utility today. मैल्थस ने ये कहा था कि जो हमारी जो पॉपुलेशन जो है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन से होती है। 1 के बच्चे 2, 2 के बच्चे 4, 4 के बच्चे 8, ऐसे ही होता है ना फैमिली में। तो हम 2, हमारे 2, हमारे 2, ये करके आगे बढ़ जाती है पॉपुलेशन। लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कैन ओनली ग्रो इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैल्थस ने जब ये थ्योरी दी थी तब ना तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स होता था, है ना, ना ही कुछ ऐसा फर्टिलाइजर, यूरिया, ग्रीन रेवोल्यूशन कुछ हुआ था। तो मैल्थस की थ्योरी हैज outlived its relevance primarily because of advent of green revolution, technocratization of agriculture to a large extent, etc. Because population growth always outstrips growth in production of subsistence resources, the only way to increase this prosperity is by controlling the growth of population. तो इन्होंने, मैल्थस ने प्रिवेंटिव चेक्स और पॉजिटिव चेक्स की बात कही थी। जब तुम अपना आंसर लिखोगे पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन का, इनसे एक क्यू मिल जाएगा, हिंट मिल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ह्यूमैनिटी हैज ओनली अ लिमिटेड एबिलिटी टू वॉलंटरली रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन थ्रू प्रिवेंटिव चेक्स।
such as postponing marriage or practicing sexual abstinence or celibacy. ठीक है, Malthus believed that practicing celibacy ये सारे कारण हैं. ठीक है, Malthus believed therefore that positive checks to population growth. अब तुम कहीं और मत सोचने लग जाना, हाँ मैं बिल्कुल सही करता हूँ, है ना, सेक्सुअल एब्सटिनेंस मुश्किल होता है. नाउ Malthus believed that therefore positive checks to population growth in the form of famines and diseases, अगर Malthus आज जिंदा होते तो COVID-19 को भी वो सही ठहराते, were inevitable because they were nature's way of dealing with imbalance between food supply and increasing population. Clear? So इसके अलावा कुछ टॉपिक्स और भी हैं. मेजर्स क्या क्या हमने लिए हैं ये थोड़ा सा खुद पढ़ोगे. पॉलिटी एंड गवर्नेंस ये एक इशू है विच डिजर्व्स अटेंशन. Hours before he retired on May 31, former Chief Secretary of West Bengal was served a show cause notice by Union Home Ministry under Section 51 of Disaster Management Act 2005, punishable by imprisonment of up to 2 years. ठीक है, वॉयलेशन अंडर उनको ये कहा गया कि आप मौजूद क्यों नहीं थे मीटिंग में. वाई वॉन्ट यू प्रेजेंट इन द मीटिंग फॉर डिस्कसिंग स्ट्रैटेजी अराउंड यास. West Bengal Chief Minister did not attend the meeting, giving a snub to the Prime Minister's meeting, and this Chief Secretary also did the same thing by this act of abstaining himself from the review meeting taken by Prime Minister for Yas. Prime Minister is the chairman of National Disaster Management Authority. In the aftermath of Cyclone Yas, the Chief Secretary has acted in a manner tantamount to refusing to comply with lawful directions of central government and has thus violated Section 51 Clause B of the Disaster Management Act. Facts to note: Prime Minister, who is also the chairperson of National Disaster Management Authority, Section 51 of the Disaster Management Act, punishable by imprisonment of up to 2 years or fine or both. Section 51 pertains to punishment for obstruction, government के काम में टांग अड़ाना, obstruction create करना. ठीक है, punishment for obstruction of the functions of Disaster Management Authority for refusal to comply with the direction. The act is enforced by Disaster Management Act is enforced by Home Ministry. मेंस के पर्सपेक्टिव से ये जो रेट्रीब्यूशन चल रहा है, बदला लेने के लिए तुम्हें दिल्ली आना पड़ेगा, ठीक है, कि डेप्यूटेशन पे तुम्हें कंपल्सरीली आना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, ये सिविल सर्विसेज मोराल को खराब करता है. Along with it, this is the result of indiscipline among civil servants. Why indiscipline? Indiscipline is politically motivated because of politicization of civil services, because the Chief Secretary must have abstained himself from the meeting called by Prime Minister on the signals given by Mamata Banerjee, the Chief Minister, because of political feud between Trinamool Congress and BJP. So whenever there is excessive political competition between political parties, it is going to lead to inadvertently, it is going to lead to politicization of civil services. Clear? ये सारा कुछ लिखा है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेज भगा रहा हूँ. मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये है आई हैव ऑलरेडी डन माई होमवर्क इन टर्म्स ऑफ PPTs so that we need not waste time in reading out the lines and all. ठीक है, नाउ ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं. डिस्ट्रिक्ट में मार्च 24 2020 से सेंटर ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेडेड जो बॉडी है, इसके प्रोविजंस इन्वोक करे थे टू स्ट्रीमलाइन द मैनेजमेंट ऑफ pandemic, empowering DMs, district magistrates, to take decisions and centralize other decisions on the supply of oxygen and movement of vehicles. The act has been extended across the country. Clear? Violation of DM Act, the officer by abstaining himself from the review meeting, ये हमने पढ़ लिया. Section prescribes punishment for obstruction for refusal to comply with any direction given by the National Disaster Management Authority. Prime Minister was not sitting as a Prime Minister. Prime Minister was sitting in his capacity as the chairperson of National Disaster Management Authority. Now, on behalf of central government or state government, National Executive Committee of Disaster Management, State Executive Committee of Disaster Management, District Authority under the Act. Right? So Section 51 of the Act has two important caveats. Under the Act, the action on the part of the person has to be without reasonable cause.
failure of an officer to perform the duty without due permission or lawful excuse. ओके तो इससे पहले भी इसे यूज किया गया है, कैसे यूज किया गया ये थोड़ा सा खुद पढ़ोगे. आज का डीएनए समय सीमा को ध्यान में रखते हुए वी विल एंड द डीएनए, बट we will be covering each and every topic in this manner only, in the analytical rules only, in the analytical way only. These rules are left, you have to read these rules. Now this course will be running in this manner only. We may not be covering the news articles just for the purpose of awareness. Awareness will be taken care of, rest assured. We will be dealing things in a topic based manner to the extent possible. When the time would permit, I might take up the issues that I could not take up on. For example, अगर मंडे के issues नहीं कवर हुए मंडे को, तो वो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे या फिर अगले मंडे वो कवर हो जाएंगे, ठीक है. बट मैं टूटे फूटे वैसे नहीं पढ़ाऊंगा इस कोर्स में कि हाँ ये देख लो झलक ही ऐसे होता है. एक्सप्लेनेशन विल बी द फोकस, questions will be the focus, and in the yesterday's daily news analysis just below the video you would see the questions. मेंस के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आप आंसर कर सकते हो. उनका रिव्यू जैसा कि मैंने बताया था, वी आर इन्वेस्टिंग अ लॉट इन दिस कोर्स, तो टीम उनका क्वेश्चंस का रिव्यू करेगी. एंड एज द कोर्स एंड्स you will be able to find 10 prelims oriented questions based upon current affairs from today's The Hindu, Indian Express and other sources like PIB. Done. And since many of you are saying that the course fee is high, so we have come up with the referral program here. Suppose if your name is Akash, okay, Akash has already enrolled for this course paying rupees 500. Akash can get 250 rupees refund provided he refers to someone who is not already enrolled in this particular course. Akash ने 25 मई को बोल लेते हैं, हाँ 25 मई को 500 रुपीज़ पे करे, ठीक है. नाउ आकाश का कोड है आकाश 007. आकाश ने ये कोड राकेश को दे दिया. राकेश इज टोटली न्यू टू JVs. ओके, राकेश, if Rakesh applies this code while enrolling, Rakesh will get 50% off. Rakesh's fee will come down to 250 rupees. Akash will get 250 rupees as the refund. Clear? So this is to expand the JVs family, and as I had promised you that the endeavor is not only endeavor is not only कि फीस इंक्रीज करनी है. मैंने तुम्हें बोला था कि जब इसमें 1000 स्टूडेंट्स हो जाएंगे वी विल डेफिनेटली डू समथिंग, राइट. आइडिया ये था कि या तो हम इसमें मैगजीन फ्री कर दें, बट मैगजीन अभी डिलीवर नहीं हो रही, राइट. तो what we have decided is you can go for this, and for you guys who are enrolled in this course, the code for the magazine will also be there. Magazine annual subscription, which is for 2200 rupees, will be coming down to 1800 rupees for you guys. Done. For only those students who are enrolled in the daily news analysis. Idea ये है कि इस पूरे कोचिंग सारी जगह हम देखें तो न्यूज़पेपर का कोर्स ऑनलाइन एरिना में कोई अच्छे से नहीं पढ़ा रहा, राइट. तो ये सोचा गया कि हाँ डेली बेसिस पे अगर हम इस मैमथ चैलेंज को डील करेंगे तो ये करेंगे, राइट. मैगजीन हिंदी में अभी नहीं आ सकती बच्चे, अभी हिंदी का थोड़ी दिक्कत है, इंग्लिश का we are doing that. And keep a tab on the WhatsApp broadcast list that has been created. The number is 8829 32368. add for DNA करके, add me for DNA, simple आप add भी करके लिखोगे, you will be added to the respective broadcast list where we are sharing the information regarding the timing and other things. PDF and PPT are provided right below this. Thank you guys, bye bye. It is highly energy taking course for me also. Speaking at length without even a break of 30 seconds for a span of 1.5 hours is something which only I have seen Mr. Modi doing just before the elections, right. Even though I have no intention to contest elections as of now, but yes, we are doing everything for your selection. Thank you, bye bye, Jai Hind guys. For those who don't use WhatsApp, we will be creating a Gmail
वी विल बी क्रिएटिंग अ जीमेल ब्रॉडकास्ट लिस्ट. जीमेल आईडी आप अपनी दे सकते हो, इसके लिए कल आईडी मैं शेयर कर दूंगा. Okay, I'll be sharing the email ID tomorrow on which you can send across your email ID, add me करके. Whenever we would be sending across something, that information will be sent across to all of you through the emails. Done? Thank you guys. Final wala thank you, bye bye. I have to have my lunch also, and then there is another class at 5:30. Bye bye guys, thank you. May not be able to answer other questions. Thank you guys.